I've had those electrolyte things put on my thigh as well. I tore my thigh muscle doing I gymnastics. don't want to know. And I had a woman put I had a woman put The guys her. can ask you the question. I had a woman put the electrolytes on my finger because I tore my thigh muscle, and yeah, So you relate. so it was right there. You relate. So I do sort of relate. And if you guys, I'm not going to say anything more because. Hey beautiful people, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys we're watching God of Kapoor and his injury. Yeah, stand-up comedy, guys. God of Kapoor. You know what? I actually forgot that we actually met him last year. You know what I mean? You know, with all the people that you start meeting, and you know, you lose track of who you've met, who you haven't met, and who you want to still see. But he's very good. He's very really good. funny. This is one of his new ones. He did have another one called Couple Fights. It's a slightly older one. I did have that one saved to do, and then all of a sudden this one came out today. We'll have to do the So other I thought the Couple Fights one we could probably relate to. Let us know guys if you want us to do that one. But this one's injury. So it says, once upon a time I went to gym and rest has been narrated in the video. So guys, but If you're new to our channel, guys, if you haven't yet, please like, share and subscribe and let us know what else you want us to react to, and especially that one with the couple one that he's just mentioned. Yeah. Would you like us to react to that? and not only that, guys, any other stand-up comedies that we haven't done. I know lots of people told us to do Abhishek up on my new one, but it's about 45 minutes. So if we got a time sometime, we'll Do do it. half Might one have time, to do half. a couple of parts on it. But anything else that we haven't done, do send us links and we'll check them out. Here we go. दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली। टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ, मैं मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस? जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जोक। You basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना? भाई मेरे दिमाग में सब आया नहीं, ना मैंने वार्म अप करा, ना कुछ करा, मैंने भाई सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी भर रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा। मेरी यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहां है, 5 वाले डंबल वहां है। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहां पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुंचा हूँ और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूंगा, पेमेंट ले एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी को। उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट, मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो में एक मैम मिली। मैंने उन्हें फोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया, फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था। पर वहां पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी तो असिस्टेंट थी। और आप खुद गैस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल? ग्राउंड को
Eyeballs. He said eyeballs. You mean balls, right? भाई वो तो हवा में रहते हैं. आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हैं? Probably strain his वहाँ चोट thigh, कैसे आएगी भाई? hamstring. आप ये वाला तो ना दुचुक्शे. या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा ले. तब आ सकती है वो आवाज. वहां तो आएगी नहीं भाई. ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है. And anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट. एकदम सेंटर. इसको बोलते हैं एडक्टर्स. You guys know एडक्टर्स? इजगार्ड की ऐड देखी है? Remember इजगार्ड ऐड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें. याद है जिसमें क्रीम लगती ग्रीन लाइट जल जाती थी. लड़कों को तो पता ही होगा ना जहाँ तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं. उनके कच्चे नहीं में तो बाइक से उतरते हैं. हाँ जी भैया चलो भैया चलो. देखा है सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास. उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है. भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट. एकदम सेंटर में चोट. वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ. मैम चोट लग गई. कह रही किधर? इधर. भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा. लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया. कह रही यहाँ लगी होगी ना. मैं कहा नहीं यहाँ. तो कह रही नहीं वही है. मैं कहा मैम मेरे चोट है यहाँ. कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे. I feel I've seen this. वहाँ Have अपने you आप done this पहुँच one जाएगा. before? मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है They do repeat themselves. कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा. भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार. थाइस पे चोट ही नहीं है. I'm like wondering if I've seen this one before. If he's done it before, I don't know. You guys know electrodes? बेसिकली इम्पैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए. ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की. उसमें जेल लगा के लगा देते हैं. उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया. कह लो खुद लगा लो. अरे मुझे नहीं आता. अरे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है? यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई. वो पत्ती पे जेल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ. कह रही ज्यादा ऊपर मत करो अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है. मैं मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई. थाइस पे वाइब्रेशंस करवा के आया हूँ. थाइस पे वाइब्रेशन. ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती वो चलवाई है मैंने यहाँ. कुछ सही नहीं हुआ भाई. बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई. और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस. शो करने चढ़ा स्टेज पे. ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ नहीं हो पाएगा आज. 30 मिनट में उतर गया. गया रूम में पड़ा हूँ. होटल रूम पहुंचा भाई. उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी. मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था. अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा. सबको अच्छा लगेगा. आज ये नरक था मेरे लिए. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में? ये रहा कमरा ये रहा वॉशरूम. यही तो रहता है ना. यही होता नहीं होता है. ये रहा कमरा ये रहा वॉशरूम. आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा. गद्दा. वहाँ रहा टॉयलेट. बीच में सोफा. किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई. मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है. शीशे का पर्पस ही नहीं है क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है. क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे अपने आप को राजा महाराजा मानते हो. वो शीशा देखते जाते अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं. अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं. राजा जी. पता नहीं भाई क्या सीन था. मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ. मेरे को समझना है. रात को 10-11 बज गए. मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम. मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फोन करा. वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है. मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है क्या करूं? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे. Okay, is that दवाई? Or is it like spray? ये जो आपका वो निकला है ना. Is that DP? मुझे बस यही याद नहीं आया. Is that like मेरे DP पे to तो know? चोट हावी हो रखी है. I need मुझे all याद that. ही नहीं आया कि मूव के और भी चीजें होती है उसके साथ. मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है. Yeah, it's आप DP सोचो to know. कहाँ कहाँ मारनी थी.
मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। It hurts, isn't it? And it's itchy as well, isn't it? Burns. मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है भाई। मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसे उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। Da Vinci Code की तरह। मुझे पता है ये जो 5 लोगों को ही समझ आता है। 5 लोग को भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, नहीं और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं स्प्रे था कि भाई। स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ऐसा बातें आई नहीं भाई। मैंने मारा स्प्रे goes everywhere. भाई, जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। अरे भाई वाह, like a genie. क्या डिसीजन लिया गौरव जी। पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने जो झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहाँ दर्द और यहाँ जलन। ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं। मुझे कुछ समझ नहीं है, करूं क्या, फंसा पड़ा हूं यहाँ पे। पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। पानी सुमन सही थे आके फूक मार। 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा। मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं। अभी लुधियाना में 3 घंटे बाद लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी, चाट के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, बहन क्या दिक्कत है। मुझे पता ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत में हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां में झुक नहीं सकता। चले जाए चले जाए, मैंने करा नहीं। मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस, ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन्स नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरे मन में पानी भर के मैं डुबो दूं, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहां से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहां से। मैं जानता हूं भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहां पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होके पहुंचा चंडीगढ़। तेरा मेरा चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टरी शॉप में चले गए। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरा सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लाल और काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी। मैं तो लेटा हुआ हूं, तौलिया लगा हुआ है, तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौले के नीचे लाल और काली तार जा रही है। 2 तारें तौले से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। लगा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं। खत्म कर दो, नेस्तों बहुत कर दो, उड़ा दो साले को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए। डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। क्या
रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूं? मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है? यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहाँ वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करूं, मैंने कहा बदतमीजी नहीं हुए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूँ, कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते, डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से टोन में मत बात करो प्लीज। आप थोड़ी देर इधर हो जाओ, मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ। तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही अभी ये सब नहीं होता है। मैंने कहा मेरी टांगे काट दो, ऐसे ही करके भेजोगे आज। तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही। You say it's okay. Yeah. Oh, Guys, have I seen this one before? I know this is brand new, but have I watched one with a different title before? Have you think done we this have. before? I I think feel like it's it's been just a like long time. it feels like, you know, like we've done this now for 4 years. It feels like, you know, one of his first ones when he was on the other shows that we probably had heard it. It just like seems so, you know, what's the word? You know, when you just remember something, Yeah, like yeah, similarity or yeah. something, and I haven't heard it before. But And he still, would have been, even if you oh, haven't, it's still funny. Oh god, this guy Still is so good. funny. This was, yeah, Karaki Onihunda. Oh God. Ray was like, oh my god. Oh gosh. She's still getting herself back together again. Yeah, I don't want to know. I don't want to know in the comment sections if you had any kind of, you know. I've had those electrolyte things put on my thigh as well. I tore my thigh muscle doing I gymnastics, don't want to know. and I had a woman put hers. I had a woman The put guys her. can ask you the question. I had a woman put the electrolytes on my finger because I tore my thigh muscle, and yeah, So you so relate. it was right there. You relate. So I do sort of relate, and if you guys, I'm not going to say anything more because yeah. Anyway, guys, that was yeah. Anyway, guys, that was the video. That was the reaction. Write down in the comments below any other stand-up comedy, and we'll see you in the next one. See you. Bye. Bye.